So I'm coming from a town where back of the mind हमेशा एक ये thought था that कभी ना कभी तो एक बार योग सीखना ही सीखना है, because you're coming from a town which is known for yoga, right? So I think that was a back thought. तो जो भी जब भी मेरे को लाइफ में चैलेंजेस फेस हुए, चाहे कॉर्पोरेट चैलेंजेस हो, फैमिली चैलेंजेस हो, कोई भी किसी भी तरह के चैलेंजेस आए, माय इनिशियल टेक वाज कि जस्ट लुक बैक एट व्हाट माय ancestors, what my family has taught me, look back at the scriptures, look at Bhagavad Gita, look at what yoga is telling about that. तो वो वहां पर दैट वाज द प्लेस आई वाज गेटिंग सोलेज, वहां से मुझे आंसर्स मिलते थे. बट एनी क्वेश्चन दैट यू हैव रिगार्डिंग योर लाइफ, फिर चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, वो बॉडी से रिलेटेड हो, वो फूड से रिलेटेड हो, वो आपके सोल से रिलेटेड हो, यूनिवर्स से रिलेटेड हो, यू विल गेट द आंसर इन भगवत गीता एंड एवरी टाइम. बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यू सेट द इंटेंशन राइट. ध्यान को अगर हम योग की डेफिनेशन से पढ़े ना, देन उसको कहते हैं देयर इज नो एफर्ट देयर. So hello everyone and welcome back to this super exclusive episode of The Achievers Club podcast show. आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है from a spiritual perspective because in this podcast we have discussed about Srimad Bhagavad Gita, importance of deep breathing and meditation so that we can incline ourselves with our inner divine energy so that we can not just achieve materialistic goals but we can also achieve the spiritual goals which we have set for ourselves. So in this podcast we are going to dive deeper into the spiritual aspect of our life. एंड इन दिस पॉडकास्ट वी हैव वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स मेधा गौतम, जिनके साथ मैंने काफी सारे डिस्कशंस कर रखे हैं बट नॉट इन द पॉडकास्ट फॉर्मेट. So you can consider that this podcast is like Bhagavad Gita 101 where you are going to understand about the importance of Bhagavad Gita and all the other aspects involved with it. And बहुत सारे लोगों का एक common question होता है which are from Gen Z and Gen X generation, that is Bhagavad Gita still relevant in 21st century? So in this podcast, our guest has given the answer to this particular question in a very interesting manner. So please do make sure that you watch this podcast till the end with at least one friend of yours, because this podcast is definitely going to help you out in inclining yourself with your inner energy and inclining yourself with your spiritual goals as well. So please enjoy this particular podcast and I'll see you at the end of this. Medha Gautam, welcome to The Achievers Club podcast show. How are you? Namaste, Sahila. I'm really good. How are you? How are you I'm doing? doing Happy great. Holi, first of all. Yeah, happy Holi to you as well. And thank you so much for being on our podcast show. Finally, हम लोग ये कर रहे हैं. And for the audience to set the context, we are from same community and we met 1 year back, almost 11 and a half months. So काफी Yeah, almost. funny way में करेंगे, but we are going to discuss about Bhagavad Gita and we are also going to discuss about your core expertise, that is meditation and breathing exercise. So थोड़ा spiritual angle भी लेंगे and थोड़ा सा technical angle भी लेंगे because nowadays people are Absolutely. considering कि योगा में हमें थोड़े से एक्सरसाइज करना है, ये सब करना है and all, but I think there's a lot of spiritual connection also which has to be formed before doing any of the practices so as to get the result. So once again, thank you so much for being on our podcast show. And yeah, Thank you for welcoming me on the show. And yes, like you started on the very right foot. Right now, these days, people think like yoga is just about the asana part. It's just the workout. It's a physical workout. It's a replacement for gym and all, right? correct. But it's not. It's a proper science. It's not a religion. I always say to my clients and everyone, to all my audience, I always say that yoga is not a science. Yoga is not a religion. Yoga is not it's just not a faith oriented thing. It's a science oriented thing. It's a proper science which is going in the background. And if you need to study yoga, you need to behave like a science student. That is how this flows. Correct. Yeah. So for the very new audience, let's begin from the very initial stage. बचपन से शुरू करते हैं तक. Like what was your Okay. journey all about and how was your school, college and other things also, and then we will come to your present tense and then we will discuss about all the topics. Sure. So see, my childhood was as simple as anyone who's coming from a small town could relate to. So I'll just tell the audience to set the context that I'm coming from a town called Rishikesh, and hopefully most of us would know where it is on the map. Yeah, Right? it's like dream place for a lot of people, including me. Okay, wonderful. You should just come. I would love to host you. Yeah, pakka. Yeah, so anyone who's coming from a small town and they have really simple things, like we enjoy in very, very simple things. Our childhood is very simple. We didn't have MACD, we didn't have burgers in our childhood growing up. We were just happy in a very small town, close-knit family setup. So yeah, that is how my childhood was like. And unlike abhi jo 2000 ke baad wale bache hain, they're like, all about the mobile phones, screens. We didn't have those things in our childhood. Correct. We had a lot of time, and most of my childhood was on the ground.
like either in the school ground or on the playground after the school. So I was like an outdoor person. So I And what played was your all of the favorite sports? sports. My favorite sport was hockey and Okay, cool, basketball. cool. Okay. Yeah. And like that was the outdoor part, but in the indoors, I love playing chess. So yeah, if you know, if you ask me what was my childhood like, in one line, the most important highlight that comes to my mind when I think of my childhood is playing chess with my grandfather. That was the best time. So that was the Okay. best thing I did in my childhood, learning and playing chess with him. That's Yeah. cool. That's cool. So that Uh-huh. was about your schooling part, and what about your college life? क्या किया था उसके बाद, and Mhm. why did you started what you're doing right now? Okay, so I am a computer science engineer. And right now, I am presenting myself as a yoga trainer and a mindset coach. Mm-hmm. So, yeah, there's a bit of shift there. Like after the college, I did my computer science engineering. And after that, I did a good time in the corporate job for, I think, 7.5 years. And after that, slowly, you could say I returned home and I started this journey on the path of yoga. Yeah. दैट्स कूल. सो आई थिंक ये ट्रांजिशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम Mm-hmm. बैकग्राउंड विच इज एक्चुअली कंप्लीटली टेक्निकल, राइट? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, Yep. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक almost 90 to 95%, even sometimes we can consider 100% for technical background hai. So Absolutely. what made you Absolutely. shift to the Been a science student all psychological my part? life. Huh. So what made you shift to the psychological part, like mindset and yoga also? Because Mm-hmm. I think yoga is Mm-hmm. not 100% technicals. It's also about like Mm-hmm. what's your psychology about that thing and how you think about yourself. So Yeah. what was the shift? Like kya hua change, and what made you do this? Right, right, right. See, in the corporate sector, like when I was working in the corporate sector, I faced a lot of challenges, right? Even any person who's just doing in a corporate life, they face challenges in life. Every day you face challenges, right? But I'm glad that I am coming from a town that is spiritually oriented, Rishikesh, and that is also called the yoga capital of the world, right? So I'm Correct. coming from a town where back of the mind हमेशा एक ये thought था that कभी ना कभी तो एक बार योग सीखना ही सीखना है, because you're coming from a town which is known for yoga, right? So I think that was a back thought. तो जो भी जब भी मेरे को लाइफ में चैलेंजेस फेस हुए, चाहे कॉर्पोरेट चैलेंजेस हो, फैमिली चैलेंजेस हो, कोई भी किसी भी तरह के चैलेंजेस आए, माय इनिशियल टेक वाज कि जस्ट लुक बैक एट व्हाट माय ancestors, what my family has taught me, look back at the scriptures, look at Bhagavad Gita, look at what yoga is telling about that. तो वो वहां पर that was the place I was getting solace. वहां से मुझे आंसर्स मिलते थे. So there was one point कि I thought, okay, now I'm getting all the signs that now is the time to completely learn it and start your journey in it. So वो ऐसे ही शिफ्ट हुआ. शुरू से वो चल रहा था, बैकग्राउंड में चल रहा था, बट देन देर कम्स अ टाइम व्हेन यू आर लाइक कि ओके, अब बस हो गया, नाउ यू हैव टू जस्ट कम ऑन द फोर फ्रंट. एक Correct. होता है ना कि कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं, अब कैमरे के हाँ, आगे आना है. that's true. दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन माय लाइफ विद यू हाँ, that's एंड cool. स्पिरिचुअलिटी बोथ. या. हाँ, so even one statement which you mentioned right now, और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया है, that हाँ. whatever questions we have in our mind, because currently I'm reading Bhagavad Gita also, so it's like जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है, whatever हम्म. श्लोक we are reading right now, उसी में हमें आंसर मिल जाता है. So एब्सोल्युटली. have you felt the same, या फिर वो it's like it's for everybody कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर उसमें मिलने ही वाला है? 100% मिलेगा, 100%. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. And it's like sometimes or every time? एवरी टाइम. बिकॉज मुझे एवरी टाइम. मैंने 3 बार क्वेश्चन किया है, ऑल्दो लाइक आई एम अ पर्सन जो कि क्वेश्चंस लाइक इट्स लाइक मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लाइक व्हाई एम आई फेसिंग दिस, या फिर व्हेन आई अचीव दिस हम्म. थिंग और समथिंग लाइक दैट. तो इट वाज हाँ. लाइक द क्वेश्चंस व्हिच केम इनटू माय माइंड थ्रू समबडी एल्स, एंड वो 3 ही क्वेश्चंस थे. आई हम्म. डोंट रिमेंबर ऑल द 3 क्वेश्चंस राइट नाउ, बट मुझे उसी दिन while I was reading भगवत गीता एंड उसी टाइम पे मुझे आंसर्स भी मिल गए. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज मेरा परफेक्ट. तो तक 100% वो लाइक इट 100% स्कोर है कि जितने यस. क्वेश्चन पूछे उतने आंसर्स मिले हैं. हम्म. करेक्ट. बस इसमें एक थोड़ी सी चीज है कि आपकी इंटेंशन कितनी है उसका आंसर जानने के लिए. ऐसा नहीं है जैसा कैजुअल क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन का आंसर तो नहीं मिलेगा कि ये बॉलीवुड मूवी कब रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी आंसर्ड करेक्ट इन भगवत करेक्ट गीता. करेक्ट करेक्ट. बट एनी क्वेश्चन दैट यू हैव रिगार्डिंग योर लाइफ, फिर चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, वो बॉडी से रिलेटेड हो, वो फूड से रिलेटेड हो, वो आपके सोल से रिलेटेड हो, यूनिवर्स से रिलेटेड हो, यू विल गेट द आंसर इन भगवत गीता इन एवरी टाइम. बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यू सेट द इंटेंशन राइट. वो आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, यू विल गेट द आंसर. That's true. That's correct.
एंड ठीक है, तो भगवत गीता के बारे में ही लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दैट, उसके बाद हम लोग हाँ। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे जाएंगे. सो हम्म। like I was about to ask this question but you have already answered ki like what made you dive deeper into Bhagavad Gita, but the Yeah. answer you have already given that. So let's talk about Bhagavad Gita, like actually what was the shift in your mindset before going through that, and like who you are as a person right now, क्या changes है हम्म। in terms of your personal self हम्म। and even let's assume your family members, your friends, तो उनको क्या transition देखने को मिला था? हम्म। I think they have observed a completely different person right now. Like अगर भगवत गीता से पहले वाला इंसान और बाद वाला देखेंगे, there would be two personalities, right? So, how should I answer that question? Let me think. A, see, what I always tell is कि even अगर आप corporate world में हो, आप family world में हो, हर जगह पे you will get answers from भगवत गीता. हर जगह पे वो shift आएगा. जो सबसे बड़ा mindset shift मेरे दिमाग में आया वो ये था कि देयर इज नथिंग टफ इन लाइफ. ठीक है, हम बहुत सीरियसली लेने लगते हैं लाइफ को ना, और बहुत प्रेशर लेने लगते हैं, है ना. और आप ये सोचो कि वी आर वेरी स्मॉल पेटी बींग्स, राइट. गीता हो रही है अर्जुन और कृष्ण के बीच में. ओके. Correct. अर्जुन इज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ हिज टाइम, जिसको सारा योग सिद्धि थी. ही वॉज नोअर ऑफ ऑल द स्किल्स, सारे उनके पास पूरी स्किल सेट सब कुछ था, राइट. इतने स्किल सेट होने के बाद भी देयर वाज सम सर्कमस्टांस की राइट इन द बैटलफील्ड, जो उनका प्लेग्राउंड है, उसमें ही ही फेल्ट इनटू डिप्रेशन, ही फेल्ट इनटू पैनिक अटैक, राइट. तो अगर इतने बड़े ग्रेटेस्ट वॉरियर के साथ ये हो सकता है, तो फिर अगर हमारे पास कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? वाई वी गो इनटू गिल्ट कि अरे ये कैसे हो गया लाइफ में हमारे साथ, राइट. तो लाइफ इज इजी, हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने माइंड से, है ना. That's true. तो यही मेरी सबसे बड़ी मतलब जो मेन माइंडसेट शिफ्ट आया है मेरे लाइफ में फ्रॉम भगवत गीता इज कि एक तो लाइफ को सीरियसली मत लेके चलो. इट्स अ जर्नी, थिंग्स विल हैपन, राइट. अर्जुन के साथ हो सकता है, आप कौन हो? हम अर्जुन का 1% भी नहीं है. That's हम true. गीता पढ़ के सोचते हैं कि जो कृष्ण बता रहे हैं वो बन जाए, बट अभी हम अर्जुन का 1% भी नहीं है, राइट. Correct. तो अगर उसके साथ हो सकता है तो फिर हमारे साथ भी हो सकता है. लाइक, टेक इट इजी. बहुत सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है. गीता का टॉपिक आता है ना, लोग ऐसे बहुत सीरियस होके बैठ जाते हैं कि कुछ ऐसे बहुत टेंस बातें होने वाली है, बहुत ज्यादा गहरा टॉपिक जाने वाला है. अरे नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्वर्जेशन है. और कृष्ण से तो अच्छा टीचर ही नहीं मिलेगा, जो इतने आराम से पहले डांट भी रहे हैं, मना भी रहे हैं, आराम से सब कुछ कन्वे कर रहे हैं. बहुत ही प्लेफुल कॉन्वर्जेशन है, राइट. जैसे आपने बोला, लेट्स कीप इट कैजुअल, राइट. तो Correct. वही गीता में हो रहा है. बहुत अच्छा, इतना टेक्निकल टॉपिक उन्होंने डिस्कस करा है, सारे तरह के योग डिस्कस करे हैं, बट बहुत ही आराम से डिस्कस कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि उन्होंने ऐसे तो नहीं बोलते ना अर्जुन को कि अरे आप बहुत ही गलत कर रहे हो या कुछ है, जो हम अपने यूजुअली क्या होता है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम फेस करी हम बहुत सीरियस हो जाते हैं उसको लेकर कि कैसे हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, लाइफ ही खत्म हो गई. अरे लाइफ नहीं खत्म हो रही, जस्ट टेक इट इजी. Correct. तो और अगर मैं अपने फैमिली मेंबर्स की बात करूँ तो यही शिफ्ट उन्होंने भी देखा है कि अगर कोई सिचुएशन आई तो शी वुड नॉट गेट टेंस्ड ओवर, राइट. ओवर टेंशन नहीं होगा उसको. शी वुड बी लाइक कि ठीक है, आज प्रॉब्लम आई है, लेट स्लीप ओवर इट, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी, कल नहीं हुई तो परसों ठीक हो जाएगी, नहीं तो एक हफ्ते बाद ठीक हो ही जाएगी. तो Correct. दैट इज द थिंग कि हम भगवत गीता से, मतलब मैं अपने लाइफ का टेक अवे बता सकती हूँ कि दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव लर्न. So it's like 100% transition भी बोल सकते हैं, 360 degree shift, whatever we call. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. That's correct. So let's take the example of Gen Zs and Gen X, जो अभी की generation है. Because honestly, बिल्कुल. I'm also Gen Z. So it's like हम लोगों को अभी spiritual angle बहुत ज्यादा attract भी कर रहा है. And हम्म. we are the generation जिसको self care में बहुत ज्यादा अभी involvement आने लग गया है. Right? Because हम्म. even not just me, because अभी तो मैं involved हूँ ही since last 2.5 to 3 years. But there are a lot of people even of my age, and they're also getting into a lot of things like transition from songs to bhajans also. That is also a very यस. big thing which has happened वेरी बिग since शिफ्ट. day यस. one of 2024. I've started listening to bhajans and all those things. Pata nahi kya, like honestly I don't know what change happened in me. 1st January se I started listening to bhajans. I started reading Bhagavad Gita, and even for me it's like, although किसी और को transition दिखे ना दिखे, but for me it's like the person I was 3 months back. I used to be like, वो बोलते हैं ना, like as you mentioned, like बहुत panic हो जाते हैं, and then we used to stress a lot. But right now I'm very cool and calm, and even मेरे को ये एक lesson भी मिला था, that even this is the lesson which I also got from my mentors, is that
whenever we are setting goals, we should set Mm-hmm. goals like for long term, and we should focus on short term action. और जो short term action के Mm-hmm. दौरान whatever failures we do get, don't forget about your long term results which you are going to get. So even Absolutely. like while going through Bhagavad Gita also I got the same, like although complete same words तो नहीं है, but it's like वो explanation बहुत brief में था and it went deeper into me. So बहुत अच्छा है, like we are discussing about that. So let's take for the Mm-hmm. example, for the sake of example, let's take Gen Z and Gen X. तो Mm-hmm. like is it still relevant? Bhagavad Gita is still relevant in 21st century, because this is like the most popular question which we do have, Mm-hmm. that is Bhagavad Gita still relevant? So answer is like the question is completely up to you. ओके, सो अच्छा देखो, पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चाहते हैं कि भगवत गीता लिखी कब गई थी। राउंड अबाउट आज से 4000 साल पहले, राइट? Almost, yeah. ऑलमोस्ट। स्ट्रेस था उस समय पे, इसलिए उन्होंने बोली। अर्जुन को डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स आए, तो कृष्ण ने उसका सोल्यूशन दिया। तो क्या आज के जेंजी को स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं? क्या आज का जेंजी डिप्रेशन में जा रहा है? True. राइट। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? हमारे माइंड से, है ना? तो जब तक इंसान के बॉडी में माइंड है, जब तक वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, भगवत गीता विल स्टे रेलेवेंट। ठीक है, सो वन स्टेप बैक, लेट्स डिस्कस कि हम्म। स्ट्रेस होता क्यों है. हम्म। स्ट्रेस होता क्यों है? देखो, एक तो इसके लिए ना एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क माय क्लाइंट्स की, Yeah. आर यू रियली स्ट्रेस्ड और यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट हैविंग स्ट्रेस इन फ्यूचर? ओके, Okay. आई विल रिपीट। आर यू रियली स्ट्रेस्ड अबाउट एनीथिंग इन लाइफ राइट नाउ, या फिर कुछ होने वाला है या कुछ हो गया था उसका स्ट्रेस हो रहा है? अभी Most प्रेजेंट of the सिचुएशन things में are, किस चीज का स्ट्रेस है? yeah, most of the नहीं things है are ना? from past or from future. इन दोनों में से कुछ एक. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, इसीलिए वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। है नहीं, स्ट्रेस हो नहीं रहा है ना? और एक चीज और मैं बोलती हूँ कि पेन कुड बी देयर, पेन विल कम, बट उससे सफर होना, सफरिंग इज ऑप्शनल। सफरिंग यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम योर माइंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज अ पर्सन गेट्स हिट बाय अ कार एंड ही और शी गेट्स अ हैंड फ्रैक्चर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हाथ में चोट लगी है, दर्द होगा। Correct. बट अब ये पता चल गया कि फ्रैक्चर लग गया है, प्लास्टर लग गया है, 1 महीने तक प्लास्टर बंधा रहेगा। तो अब उसके बारे में चिंता करके कि इसमें 1 महीने में क्या क्या मैं लूज करूंगा, तो सफरिंग तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना। पेन Correct. हो गया, ठीक है, फिजिकल पेन इज देयर, बट Correct. उससे सफरिंग और स्ट्रेस तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो Correct. स्ट्रेस हम क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस हो नहीं रहा है, स्ट्रेस हम बना रहे That's a deeper one. हैं। तो उसका आंसर भी हम्म। मिल जाएगा पक्का. हम्म। ठीक है. So ठीक है, you can go deeper into why we should read Bhagavad Gita and is it still relevant in 21st century? ओके ओके, या लेट्स कंटिन्यू दैट। सो पहली वाली बात पे चलते हैं कि व्हाई शुड वन रीड भगवत गीता, है ना? तो अभी यू जस्ट सेड वन थिंग, आई थिंक यू जस्ट मेंशन समथिंग कि योर मेंटर, व्हाट डू यू से, योर मेंटर टोल्ड यू Yep, कि थिंक we अबाउट योर should have लॉन्गर टर्म थिंग। हाँ, long term goals, लॉन्ग short टर्म term गोल्स। action, and short term action में failures आते रहेंगे, but don't forget about the long term transformation and long term results which you are going to get. राइट। दिस इज द मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर लेसन दैट पीपल हैव इन माइंड फ्रॉम भगवत गीता। आप किसी से भी पूछो, अगर किसी ने भगवत गीता का नाम सुना है तो उन्होंने उसके साथ में एक लाइन I'll जरूर mention सुनी that. है। कर्म कर फल की चिंता मत कर. Exactly. एब्सोल्युटली। Honestly, while going through that, it's like हम्म। हर बार when like it's like I do read every day. हर रोज कुछ ना हम्म। कुछ न्यू lessons मिलते हैं. But I am surprised why people have that one single statement in the form of lesson. एग्जैक्टली, राइट। वो एक कोर थीम सा बन गया है वो, मतलब पॉपुलर, तभी आई डेंट से कि वो इम्पोर्टेंट मतलब मेन थीम है। वो पॉपुलर थीम हो गया है भगवत गीता का, कि किसी से पूछा भगवत गीता क्या है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, राइट? Correct. तो अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा मुझसे कि व्हाई शुड वन रीड भगवत गीता? Correct. तो शुड आई आंसर दैट क्वेश्चन, Yes. या बस पढ़ लो, फल की इच्छा मत करो? नहीं नहीं. Let's go for the answer. दैट वाज अ रिटोरिकल थिंग। कि देखो, आई विल रिपीट। सो द क्वेश्चन वाज, व्हाई शुड वन रीड भगवत गीता? वाई में यू वांट एन आंसर, यू वांट Correct. एंड गोल क्या है, यू वांट द फल। तो फल की तो चिंता करनी नहीं है ना, कर्म करना है, रीड भगवत गीता, डोंट वरी कि उससे क्या होगा। तो Correct. दैट वुड बी माय आंसर। कृष्ण जी की सुनो, रीड भगवत गीता एंड डोंट वरी कि उससे क्या क्या होने वाला है। देखो, वो तो मतलब एक थोड़ा सा, दैट वाज अ जोक पार्ट, बट लेट मी आल्सो टेल यू द सीरियस आंसर कि व्हाई शुड वन रीड भगवत गीता।
टेल मी एट एनी पॉइंट इन लाइफ एवरी पर्सन इज सीकिंग समथिंग. कुछ तो हम ढूंढ ही रहे होते हैं ना. करेक्ट. चाहे वो प्रमोशन ढूंढ रहे हो, चाहे वो ज्यादा पैसा ढूंढ रहे हो, चाहे नई गाड़ी ढूंढ रहे हो, चाहे शादी करना ढूंढ रहे हो, चाहे करियर स्विच करना ढूंढ रहे हो, राइट. एवरी टाइम अ पर्सन, या फिर कोई स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट ढूंढ रहा हो, कुछ तो ढूंढ ही रहा है ना हर इंसान लाइफ में. हर दिन करेक्ट. सुबह उठ के यू वेक अप विद वन थॉट कि टुडे आई, या फिर इस मंथ का मेरा ये थीम है, इस साल मुझे ये करना है. सो एवरी वन इज ट्राइंग टू सीक समथिंग. if you have that clarity कि this year or this at this particular phase of my life I am seeking this thing, वो एक बार क्वेश्चन क्लियर हो जाए ना, read Bhagavad Gita to get the answer. Even if you want more money, even if you want to get more promotion, and I can tell you, I can mention many references जहां पर मुझे corporate life में भगवत गीता से बहुत हेल्प मिली है. That's cool. प्रमोशंस Like you मिल can जाते हैं share लोगों को one भगवत or गीता two से. of those if you're comfortable to share that. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई वुड लव टू. सी देखो, भगवत गीता ऐसी चीज नहीं है कि वो खाली आपको ना, बहुत बार लोग उसको समझ लेते हैं कि ना खाली स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए, नहीं, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है. अब भगवत गीता में कृष्ण जी एक बात बोलते हैं कि हाउ अ योगी शुड बी. ओके, देयर इज अ मेंशन हाउ अ योगी शुड बी, एंड ही सेज टू थिंग्स: युक्त आहार, युक्त विहार. युक्त मीन्स suitable, suitable eating and suitable behavior. Like you should not speak much, you should not eat much, and you should not you should not talk much, you should not speak much, and you should behave according to the circumstance. ठीक है. अब इस छोटी सी चीज को आप कॉर्पोरेट लाइफ में लगा दो कि ऑफिस मीटिंग चल रही है और आप शांत बैठे हो या आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, that won't do you any good. Behave according to the circumstance. Learn how to read the room. ये सारे चीजें कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत काम आती है. इफ वन नोज हाउ टू रीड द रूम, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, युक्त तरीके से अगर खुद को प्रेजेंट करना आ गया, योर लाइफ इन कॉर्पोरेट इज सेट, राइट. ये Correct. कहाँ से आ रहा है? भी भगवत गीता से आ रहा है. Correct. सो दिस इज वॉट लाइक, I think there was one presentation where I mentioned this reference to the client, and we were doing a branding presentation to a UK based client, and they really loved the concept. They said, yes, this is what we have to do. We don't want to overdo. So the thing was, discussion was going on around the branding. So brand का logo design हो रहा था, and they were all so stressed कि they were like overdoing the logo. So I introduced this philosophy, and they were like, okay, let's go back one version, and that version was good. उसी को लेके चलते हैं, and that campaign was a good success. ठीक है. So that led me to a promotion. तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि सिंपल सिंपल इंस्टेंसेस भी अगर आप भगवत गीता से एक भी लाइन पढ़ के अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो ना, पूरी भगवत गीता भी नहीं लगाओ, you'll sail through. That's cool. So, like, how should we take our first step into it? Because honestly, there are a lot of explanation things also. Because right now I'm reading Bhagavad Gita as it is. तो उसमें I'm reading English version, right? संस्कृत में श्लोक होते हैं, and my background is also in Sanskrit because I think मैंने 9th standard तक संस्कृत भी पढ़ा in school. So it was easy for me to read the shloks in Sanskrit, and then English में explanation था. But let's take for the audience who is completely, let's assume, having zero knowledge about Sanskrit also, and let's take for example उनको English और हिंदी में भी जो explanation है, because that is also slightly deeper. मुझे भी sometimes it's like I use Google to understand those statements and all. तो like how should we take our first step अगर हमको समझना है right from the basics, right from श्लोक 1, let's take for example. So how should we take our first step into it? Like how should we read Bhagavad Gita? That is what you're asking, है ना? Yeah. Okay. Now here I'm gonna give you one very uncommon advice, okay? Yeah. एक सिंपल एडवाइस हो सकती है कि एक सिंपल सजेशन हो सकता है कि start with a comic on Bhagavad Gita. आज की डेट में there are so many commentaries. First read a comic on Bhagavad Gita because illustrations होंगे, comics होंगे, you'll get to know the dialogue. थोड़ा स्टोरी का बेस पता चलेगा. फिर उसके बाद किसी की कमेंट्री उठाओ, उसको पढ़ लो, वहां से चलो. But that is not what I would ideally suggest. If one wants to actually read Bhagavad Gita to apply into his or her life, the best way is to listen it from a guru, to listen it from a spiritual mentor. Why am I saying this? Suppose आपने किसी की बहुत अच्छी कमेंट्री भी उठाई, ओके, उसको पढ़ आप अपने इसी दिमाग से रहे हो जिसका मेंटल लेवल आपके जितना ही है ना. अब आप उस बुक से पढ़ रहे हो, आप उसके आंसर्स को उतना ही समझोगे जितना आपका खुद का मेंटल लेवल है, राइट. उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, बट समझोगे तो उतना ही परसेप्शन से ना, जहां तक अपना एक्सपेंड हुआ है, अपनी अवेयरनेस, अपनी कॉन्शियसनेस जहां तक एक्सपेंड हुई है, वहीं तक समझ पाओगे. इसीलिए कहते हैं, लाइक शास्त्रों में कहा गया है, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग आउट ऑफ फ्रॉम माई सेल्फ, शास्त्रों में कहा गया है
कि whenever you are reading any scripture, whenever you are reading any spiritual text, okay, read it from a guru. एक ब्रह्मवेत्ता गुरु से सुनिए जिन्होंने वो एक्सपीरियंस जिया है अपने लाइफ में. देन दे विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम अ हायर स्टेट. करेक्ट. सिंपली समझो, अगर स्कूल में हमको मैथ्स की बुक खुद ही से पढ़ने को बोल दी जाए तो वुड वी गेट दैट? नो. वी वुड नॉट एबल टू गेट दैट. हमें टीचर चाहिए उसके लिए, क्योंकि दैट्स टीचर ने उसकी हायर एजुकेशन करी है और उसको अपने लाइफ में, रियल लाइफ में अप्लाई करा है मैथ्स को. तभी वो टीचर हमको सिंप्लीफाई करके समझा सकता है कि ओके ये प्लस करना है, ये जो भी साइन कॉस थीटा करना है वो करा देते हैं. है ना, हमको बहुत सिंपल लगता है. तो इसीलिए अब आप उसको टीचर बोलो, अब आप उसको गुरु बोलो, उसको स्पिरिचुअल मेंटर बोलो, जो टर्म आपको अच्छी लग रही है, जेंजी हो, जो टर्म अच्छी लग रही है वहां से पिक कर लो. बट री लिसन इट और गेट द लर्निंग्स फ्रॉम एन एनलाइटेंड गुरु. दैट इज व्हाट आई विल टेल. हिंदी में से कहते हैं ब्रह्मवेत्ता गुरु, जिन्होंने ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष समझा है. देखा मतलब आंखों से नहीं देखा, बट प्रत्यक्ष समझा है, उस चीज को जिया है, उस चीज को. लर्न इट फ्रॉम देयर, स्टार्ट फ्रॉम देयर. दैट्स बहुत टाइम बचेगा, बहुत एनर्जी बचेगी और बहुत डीप में चले जाओगे एक बार. हाँ, correct. And even for the audience who is actually like deep into binge watching and all, so I would suggest कि महाभारत देख सकते हैं and then they can go deeper into this because even एब्सोल्युटली. ये गेट द suggestion भी स्टोरी मुझे ना भाई पहले. से ही मिला था. Like हाँ. when I started reading this, मुझे characters वगैरह नहीं समझते थे. Honestly मैंने आज तक भगवत गीता like currently I'm reading but मैंने महाभारत नहीं देखी है. So मेरे भाई ने कंप्लीट देख रखी है. आई थिंक 2-3 बार देख रखी है. So I अच्छा. said him, I used to ask him question like ये कौन है, who is this character and why is he doing this to him and all these things. So he said like first go through Mahabharat then you'll understand. मैंने कहा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं. So अब तक तो नहीं किया है, अब एब्सोल्युटली. तक देखा नहीं है, but definitely नहीं नहीं, audience can watch that and डू वॉच महाभारत. हाँ. थोड़ा सा आइडिया लगेगा, स्टोरी का बैकग्राउंड क्लियर होगा. करेक्ट करेक्ट. पर पता है क्या होता है, ये भी एक डीआईवाई सॉल्यूशन है हाँ. कि हम पहले महाभारत देखेंगे, क्योंकि महाभारत इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी. करेक्ट. उसको ऑलमोस्ट देखने फोर में टू मुझे फाइव नहीं हंड्रेड लगता, अगर, एपिसोड्स है. हाँ एग्जैक्टली, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फिर उसके बाद आप गीता पे आओगे, अगेन बहुत सारा एनर्जी और टाइम कंज्यूम हो रहा है जो कि आज के इंसान के पास तो नहीं है. करेक्ट. बट अगर आप यही चीज डायरेक्टली गुरु के पास जाके सुनते हो, एंड देर आर ऑनलाइन मीडियम्स, यू डोंट हैव टू just resign your job and go and sit near a guru. There are online mediums these days, right? बट अगर आप जब एक गुरु से सुनते हो तो वो आपको बैकग्राउंड स्टोरी तो फर्स्ट लोग से पहले ही समझा देते हैं. करेक्ट. तो आपका फिर से टाइम बच गया, वो 405 एपिसोड देखने का टाइम बच गया, एनर्जी बच गई. सो अच्छा, सेकंड लेसन फ्रॉम भगवत गीता व्हाट आई am applying in my life and what I would advise the people watching it is, at any cost protect your energy. At any cost protect your energy. करेक्ट. Right? Money you can earn, energy you cannot. Energy and time you cannot earn back. तो उसको बचा के रखो. एक योग के साधक के लिए भी हम यही कहते हैं कि अपनी एनर्जी बचा के रखो एट एनी कॉस्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर वहीं पे सारी चीजें आ जाती है, बाउंड्री सेट करो, ये करो वो करो, जो भी करना है करो, बट भैया ये पता होना चाहिए मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी. अपनी एनर्जी को वैल्यू करना सीखो. राइट? लाइक आवर मेंटर सिद्धार्थ ऑल्सो ऑलवेज सेज कि एट एनी कॉस्ट यू शुड नो द वैल्यू ऑफ योर 1 आवर. यू शुड नो कि उसकी करेंसी वैल्यू क्या है. वो करेक्ट. भी योग इसलिए कह रहे हैं ताकि आप अपनी एनर्जी और टाइम सही चीजों में एक्सपेंड कर सको. वो जो हम एक्स्ट्रा स्क्रॉल करते चले जाते हैं ना, वो सब बचेगा. फिर दैट्स ट्रू. एक्स्ट्रा स्क्रॉल कर लेते हैं, ओवर टेंशन कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो सब बचेगा. प्रोटेक्ट योर एनर्जी. I think there's also one of the quotation which I got from my mentors is like wherever focus goes, energy flows and life grows. So it's like almost एब्सोल्युटली. energy से ही correlated है. So let's talk about the lesson which you got about energy part, right? So ठीक है. Let's take for example like हमने boundaries वगैरह set कर लिए, but let's take for example complete new audience, complete new person. उनको पहले तो energy का importance समझना है, right? Then how do we set boundaries so as जो हमारी energy है current stage में उसको हम save कर सकें, and for the let's assume bigger problems in our life and like to get the better solutions in our life, how do we raise our energy? So ये तीनों points up to you. Okay. That's a big question, but चलो I'll try to answer that out. So you started कि energy की importance क्या है ना? So what are we? We अगर हम भगवत गीता के हिसाब से लें या किसी भी स्क्रिप्चर के हिसाब से लें, सबसे एक फेमस लाइन आ जाती है, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड. राइट? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. बोलते हैं है like ना? हाँ. हाँ, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड. व्हाट एम आई? आई एम एन एनर्जेटिक सोल. एक एनर्जी का पीस है ना,
क्वांटम फिजिक्स में चले जाओ, क्या है? सब कुछ एनर्जी ही तो है। करेक्ट। एनर्जी के अलावा तो एटम्स, बचा ही नहीं वो ना सब कुछ। होता है यहाँ। एवरीथिंग कम्स डाउन टू एनर्जी। ये हाथ उठा के मुझे यहाँ रखना है, मुझे आपसे बात करनी, आई नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग। You need to earn, you need energy to go to the office and get the money, get the salary. And for anything you need energy. एनर्जी की तो इम्पोर्टेंस की मतलब कोई वो, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? एंड अगर हाउ हम डू वी किसी सेट से बाउंड्रीज? यप। अगर हम किसी से मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी एक्सचेंज, राइट? सो या व्हाट डू यू सेइंग? Yep. So first was that, like, what's the importance of energy? हम्म You have dived deeper into that as well. So let's assume, अभी जो boundaries वगैरह set करने का, you have mentioned about that. So how do we set हम्म boundaries? Being more like by being more conscious, and how do we बाय बीइंग मोर actually raise our कॉन्शियस। energy? सी बाउंड्री सेट करने में आई थिंक दो तीन चीजें आती है। पहला, लर्न टू से नो, एंड डोंट रिग्रेट और डोंट फील गिल्टी वाइल सेइंग नो। ये दोनों That's चीजें the इंपॉर्टेंट biggest thing. That's honestly the है। biggest thing and एग्जैक्टली। the best thing which anybody can do. हम्म। बिकॉज नो बोलना तो चलो फिर भी हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, बट क्या होता है, जो हम थोड़े अच्छे वाले प्राणी होते हैं ना, वेर वी आर वेरी, सबके लिए काम करना है, सबके लिए अच्छा दिखना है, सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें करनी है, तो जैसे ही हम पहला नो बोलने लगते हैं ना, सबसे पहले हमारे अंदर गिल्ट सिंक इन करता है, हम रिग्रेट में चले जाते हैं, अरे मैंने नो बोल दिया यार, अब ये तो मुझसे बात ही नहीं करेगा या बात ही नहीं करेंगी अगले दिन, व्हाट विल हैपन? तो नो बोलना सीखो, और नो बोलने के साथ रिग्रेट मत करो, नेवर फील गिल्टी अबाउट नो raising the priority of your peace. Never feel guilty about that, That's true. right? And I think यहाँ पे एक even मेरा खुद का एक experience है. Mm-hmm. I've Yeah. started saying no a lot. Honestly, Mm-hmm. a lot. और regret तो होता नहीं है, सच बता दूँ तो. But it's like बहुत सारा time जरूर बच जाता है for my own activity, Hmm. and I am able That to gives you prioritize energy. myself. I am able to और prioritize myself. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और तो even टाइम बच गया ना, अब एनर्जी मिल जाएगी, उस टाइम में क्या करोगे? correct, टाइम बचा तो साथ में एनर्जी भी बची गई अपने आप। correct. अब उस एनर्जी को डायरेक्ट कर लो सही जगह, जो भी काम करने हैं, प्रायोरिटी क्लियर करो अपनी। That's true. And even I think मैंने ये एक podcast में ही सुना था that like when we are not saying no to anybody, right? We are like हम्म the straight trees we have, right? और हम्म। उसके द साथ एक आइसक्रीम और था. मैन। हाँ, like whenever like वो कौन होता है, लकड़हारा जो बोलते हैं, right? तो वो हम्म। जंगल में जाते हैं, सबसे पहले वो सीधे लकड़ी वाले पेड़ों को सबसे काटते हैं. पहले तो सीधे पेड़ sometimes we कटते हैं। have to be like थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना जरूरी है. And I think that's the best thing which I got, I think 6 months back. राइट, एब्सोल्युटली। एंड पता है, ये लकड़हारे वाली स्टोरी से, वो जो सीधे पेड़ कटते हैं, उससे मुझे एक बात और याद आई कि अगर मतलब जेनजी के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है भगवत गीता पढ़ने का, ओके, आपके पास टाइम नहीं है महाभारत देखने का, गुरु के पास जाने का टाइम नहीं है, किसी चीज का टाइम नहीं है, सुपर बिजी शेड्यूल, वी अंडरस्टैंड, एवरीवन इज बिजी, ओके, सिंपली स्टार्ट सिटिंग विद योर पेरेंट्स, स्टार्ट सिटिंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्योंकि अभी जो एटलीस्ट जेंजी भी है ना, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दे हैड एक्सेस टू भगवत गीता, दे हैड एक्सेस टू ऑल द स्क्रिप्चर्स, या नहीं भी एक्सेस थी ना, तो हमारे जो बहुत, अगर हम दो तीन चार पीढ़ी पीछे चले जाएं, तो हमारे एंसेस्टर्स थे, दे वर सुपर स्मार्ट। उन्होंने क्या करा है, गीता की लर्निंग हो, वेदों की लर्निंग हो, स्क्रिप्चर्स की लर्निंग हो, उससे बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्टोरीज बना ली हैं, छोटे छोटे ना मुहावरे, कथा कहानियां बना ली हैं, राइट? जैसे ये सीधे पेड़ कटने वाली बात, ये मुहावरा बहुत ज्यादा सुनाया जाता है घरों में। तो अच्छा. ऐसे अगर हम उनके साथ बैठ के सुनने लग जाए, और उनसे सिंपल जो रीजनल हमारी स्टोरीज हैं, रीजनल मुहावरे हैं, इफ यू इवन स्टार्ट लिसनिंग एंड अप्लाइंग दैट इन लाइफ ना, वील बी गुड टू गो। वो अपने आप फिर इंक्लिनेशन, योग अपने आप, गीता अपने आप इंक्लिनेशन ले आएगी आपका। That's cool. ठीक है. So let's now talk about the last हम्म। question with respect to Bhagavad Gita, and then we will go deeper into meditation aspect and all. Because ओके। मेरा intention यही था that we'll just scratch the surface, because मेरे को part 2 भी करना है where we will ओके। discuss only about Bhagavad एब्सोल्युटली। Gita. So हम्म let's talk about your favorite shlok so far. Maybe it could be 1, 2, 3, 5, 10, whatsoever, but you can dive deeper into that and हम्म। उसका explanation के साथ. Sure. So, you know what? Instead of a shlok, I'll just give you one word. So, see, Sanskrit language is such a beautiful language. The number of alphabets we have in Sanskrit, English में आधे ही हैं. So, instead of giving you a full shlok, I'll just give you one particular word from Bhagavad Gita, which is my favorite word. And like मैंने भगवत गीता दो तीन बार तो पढ़ी है, बट उसमें से ये पर्टिकुलर वर्ड रिसेंटली मेरे साथ बहुत ज्यादा इट्स स्टिकिंग, लाइक एवरी डे, इट्स लाइक कि फ्रॉम द लास्ट 1 week आई एम जस्ट गेटिंग अप विद दिस वर्ड, सो आई जस्ट मेंशन दैट वर्ड, लाइक दैट्स माय फेवरेट वर्ड आउट ऑफ भगवत गीता। चैप्टर 6 है ध्यान योग, ओके।
ध्यान योग में इन वर्स 10 श्लोक 10 में एक शब्द आता है जब कृष्ण योग की बात कर रहे होते हैं. ओके, इट्स ध्यान योग. द वर्ड इज यत चित आत्मा. Okay, this is a single word. I'm just breaking down in syllabus. Yat Chit Atma. This is one word. Okay, now let's break it down. What does that mean? Yat Chit Atma means तीन word से बना है ये. The normal English meaning of this one word is a person with a stable mind and body, a person with a stable consciousness. Now we cannot define one word for this in I think English. Okay, so voice, we'll just use POISE, Yat Chit Atma. Uh-huh. being cool and Maybe. calm. Yeah, being cool and calm, right? But there is one more layer deeper to it. Okay, बिकॉज चित्त का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है. चित्त वो चीज है, चित्त इज दोज डार्क एरियाज ऑफ योर माइंड विच यू आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ. राइट. हम कितना भी अच्छा बिहेव करें, कितना भी अच्छा दिखने की कोशिश करें, everyone has those few dark corners in their mind which they don't even want, which they are not aware of. right. क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है चित्त का जहां पर हमारे प्रीवियस संस्कार सारे हैं. अ लॉट ऑफ अनहर्ड मेमोरीज आर देयर दैट वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ. ठीक है, हमारी अवेयरनेस ही नहीं पहुंची चित्त तक. तो श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं ध्यान योग वाले चैप्टर में दैट इफ यू प्रैक्टिस योग, इफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, meditation and yoga has the power to make you a yat chit atma, to make you a person with stable and calm mind and body. वो जो डार्क एरियाज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके. इतनी पावर है ध्यान योग. जिन डार्क एरियाज के बारे में हम अभी अवेयर ही नहीं है उनको भी क्लियर करने की पावर है योग. That's एंड cool. द मेथड ही इज यूजिंग इज ध्यान योग. And the दैट best इज part here लाइक. is, या. while we are recording this podcast, आज मेरा वही वही chapter, वही verse शुरू होने वाला है. Yesterday I ओके. closed the 9th ओके. verse and today is the ओके. 10th one. So maybe परफेक्ट. we'll परफेक्ट. dive deeper into that सी as well. व्हाट अ वंडरफुल serendipity this is, right? Yeah. या. So let's now discuss about the meditation and breathing part, because spirituality maybe I feel like meditation is the most important thing, and without meditation no one can dive deeper into their own self. So what are the different things which we should keep in mind before doing meditation and while doing meditation? ओके, तो सबसे पहले तो आई जस्ट से, क्योंकि हम जेनजी को लेके चल रहे हैं ना, राइट? सो Correct. फॉर जेनजी आई वुड लव टू क्लियर कि मेडिटेशन है क्या. ओके, मेडिटेशन इज नॉट सिटिंग समवेयर, सिटिंग अंडर अ ट्री, क्लोजिंग योर आईज एंड जस्ट ट्राइंग टू पुट योर फोकस इन. दैट इज नॉट मेडिटेशन. वो ध्यान है ही नहीं. योग की 8 सीढ़ियों की बात करें तो ये धारणा का प्रोसेस होता है. दिस इज नॉट ध्यान. दिस इज पुटिंग फोकस टू इट. ध्यान तो वो है जहां आपका कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा है. ठीक है, मेडिटेशन इज द लूज ट्रांसलेशन ऑफ ध्यान. ओके, तो दैट इज अ बिग मिथ पीपल हैव कि मेडिटेशन के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, आंख बंद करनी पड़ेगी, बहुत फोकस लगाना पड़ेगा, सब क्लियर करना पड़ेगा. इतना यहाँ सोचने चलते हैं तभी मेडिटेशन नहीं हो पाता. एंड पीपल आर लाइक ओके आई कांट सिट straight for even 1 minute, how do I meditate? That is the biggest problem, right? True. You don't have to even sit, you don't have to close your eyes for meditation. Meditation is simply being aware 100% of the present moment. For example, आप चाय बना रहे हो, आप चाय बनाते हुए आपका पूरा ध्यान चाय बनाने पे होना चाहिए. आपने पत्ती डाली उसमें, सी हाउ दे स्प्राउट अप, सी हाउ चाय का कलर कैसे चेंज हो रहा है, वहां पूरा ध्यान दो. उस समय, उस समय ये मत सोचो ऑफिस में क्या करना है, उस समय ये मत सोचो रात को खाने में क्या बनाना है. उस समय केवल और केवल चाय बनाओ. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज वॉकिंग टू कॉलेज, you can meditate while walking to college. We have walking meditations, right? Okay. वॉक And करते how हुए do we do देखो that? रास्ते में क्या दिख रहा है. हाँ, आई एम जस्ट टेलिंग. या आप घर से कॉलेज तक वॉक कर रहे हो, इफ यू जस्ट वॉकिंग, या आप बस स्टॉप तक वॉक कर रहे हो, उस रास्ते में बी 100% अवेयर. नोटिस अराउंड यू. नोटिस कि कितने कुत्ते देखे रास्ते में, कितनी बिल्लियां देखी, स्काई का कलर क्या था उस दिन, आज मौसम कैसा लग रहा है. नोटिस एवरी सिंगल डिटेल. नोटिस हाउ योर ब्रेथ इज फ्लोइंग टुडे. बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, बी 100% प्रेजेंट इन दैट वॉक. उस वॉक में ये मत सोचो कल क्या होना है या कल क्या हुआ था. उस वॉक में ये सोचो जहां चल रहे हो उस रास्ते पे क्या क्या चीजें दिख रही हैं. स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट. और वहां से इतने सुंदर सुंदर आइडियाज आने लग जाएंगे, इतने सुंदर आंसर्स मिलने लग जाएंगे लाइफ के, दैट यू वुड बी सरप्राइज्ड. Okay, so simply, like you can correct me if I'm wrong. या. Meditation का main intention है, whether we are, let's assume, by sitting and by closing eyes, focusing on breath,
या फिर वॉकिंग मेडिटेशन और व्हाट्सओवर, Hmm. the main intention of meditation is to be present. Simple. Absolutely. Be present. Cool. Yeah. So Simple, na? this is the basic. ठीक है, हाँ. This is the basic one. And second, as you mentioned about walking meditation, what are the different formats of that? Like, what are the different types? Walking meditation, sitting meditation, bathing meditation. You could do meditation anywhere. जो भी Okay. एक्टिविटी आप कर रहे हो, यू कैन बी सी मेडिटेशन इज नॉट समथिंग यू डू. योग में हम कहते हैं यू हैव टू बी मेडिटेटिव. आपको स्टेट में पहुंचना है कि 24 घंटे आप मेडिटेशन में हो. मतलब आप 24 घंटे प्रेजेंट हो. आप कल की चिंता नहीं कर रहे हो, आने वाला है जो गया कल उसकी चिंता नहीं कर रहे हो, आप 100% इस मोमेंट में हो. फिर एनी फॉर्मेट यू पिक, यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक. अच्छा टेल मी, ओके, दिस इज अ क्वेश्चन आई वांट टू आस्क एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. ओके, just clearly think and tell me what was the when it was the last time when you seriously listened to one music. See, when you full focus से आपने एक गाना सुना and you were not multitasking that time. रील स्क्रॉल नहीं कर रहे थे, ऑफिस का या कॉलेज का कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, बस सिंपल बैठ के गाने का एक एक शब्द, एक एक लिरिक्स, एक एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुन रहे थे. When was Not the me. last time you did that? Not me. Honestly, I have not done this so far. ट्राई डूइंग दैट. दैट इज अब साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे चले जाओ, वो इसको म्यूजिक थेरेपी की तरह से रिकमेंड करते हैं टू रिमूव स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं भजन कर लो पूरे अच्छे से. भक्ति योग में प्रहलाद कह रहे हैं बहुत अच्छे से भजन कर लो. हम होली पे ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड इफ यू डोंट मेंशन प्रहलाद देन इट वुडंट बी द राइट थिंग टू डू, राइट? तो ही वाज द लाइक एपिटोम ऑफ भक्ति, है ना? भक्ति योग में क्या होता है, जब कोई जैसे आपने भजन सुनना स्टार्ट करा, आप भजन सुन रहे हो, आप उस सुर के उसमें लय में चले गए ना, बह गया. भजन मत सुनो, आप रैप भी सुन रहे हो ना, 100% फोकस से वो रैप सुनो. That's बट true. देन वी कम बैक टू एनर्जी, कि रैप सुनने और भजन सुनने में कितना फर्क है. वो जो वर्ड्स आप सुन रहे हो, वो जो शब्द आप सुन रहे हो, रैप भी आजकल सी, भजनों पे भी रैप्स चल गए हैं अभी. हाँ, करेक्ट. स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रैप्स चल गए हैं. जस्ट बी अवेयर कि आप कैसे शब्द अपने माइंड में डाल रहे हो, बिकॉज वर्ड्स कैरी एनर्जी. True. तो जस्ट लिसन, आप कैसा म्यूजिक सुन रहे हो. फॉर That's true. एग्जाम्पल, आपका कोई किसी का ब्रेकअप हुआ है और वो बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग सुनने बैठ जाए, कैसे मूड अपलिफ्ट तो नहीं हो सकता ना, और ही सैड जोन में चले जाएगा. Correct. That's वर्ड्स correct. कैरी एनर्जी. That's correct. So that is simple meditation. हाँ. So let's discuss about this one because even Mm-hmm. recently जो मेरा अभी कह सकते हैं like I am reading भगवत गीता और I am reading book also. So इससे पहले I read one book जिसका main topic था like the name of the book is Don't Believe Everything You Think and Your mind plays everything tricks. what you Never mentioned. believe what your mind thinks. करेक्ट करेक्ट. उसमें यही था दैट इवन राइट नाउ वी आर कनेक्टिंग विद भजन राइट. सो मैंने ये कहीं तो पढ़ा था दैट व्हेनेवर वी आर लिसनिंग टू एनी काइंड ऑफ भजन और एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग there are three Mm-hmm. stages of that when we are actually connecting with the god. Like first is like I think we feel goosebumps and all. Second is second stage I don't remember that, and third is like you feel like dancing. These are the three stages, Mm. right? So it's Yes. like whenever we do that we are with full energy and enthusiasm, or you will never ever get any moment of your life when you are completely like high performing and you're fully energetic and so on, and you're having anything and you're thinking about anything. You Yes. can't remember about any of the things. You will be Isn't grateful. that meditation? You will be grateful कि यार thank you so much for this experience and so on, but you will not think like कि यार मेरी life में क्या चल रहा है and I'm facing this problem and so on. So Mm-hmm. I am able to connect book also with the things which you mentioned, like with the help of meditation we can come to the Mm-hmm. stage where we are not thinking about anything. And I Yeah. also feel like whenever we are joyful, Mm-hmm. definitely it's the space where we don't think about anything. We are just देखो, like I'll just, हाँ. we are just enjoying the moment. We are Mm-hmm. being in the present moment, like Mm-hmm. being in the event, right? So दो दिन I don't think like मैंने किसी किसी चीज के बारे में सोचा होगा, right? Because we were in full energy mode and all. So I think that is also a cool one. Mm-hmm. देखो, So व्हाट आई विल टेल यू इज ना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मैं करूंगी. yeah, ठीक है, बिकॉज इनिशियली आई टोल्ड यू योगा इज अ साइंस. योगा हाँ, इज नॉट अ थिंग ऑफ फेथ और रिलीजन. योगा इज अ प्योर साइंस. एंड आई विल आल्सो शो यू द करंट बुक व्हिच आई एम रीडिंग. yeah, दिस इज द योग पतंजलि योग सूत्रास. ओके, सो इस बुक को हम कहते हैं द बाइबल फॉर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट द बुक इज कॉल्ड.
एंड दिस इज अगेन रिटन 2500-3000 साल पहले. ओके. सो in the book we have a very very intricate and very logical clarification of the mind के types क्या हैं, mind के stages क्या हैं, जैसे आपने stages की बात करी. ओके. अब बहुत बार हम लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि मेडिटेशन आपको उस स्टेट में पहुंचा रहा है वेर यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. ठीक है. लेकिन माइंड के यहाँ पर 5 स्टेजेस होते हैं. बाकी के डीप में नहीं जाते. आई जस्ट मेंशन द लास्ट 2. जो सेकंड लास्ट स्टेज होता है वो होता है वेर यू आर जस्ट हैविंग वन सिंगल थॉट. एकाग्रता जिसे कहते हैं. वन सिंगल थॉट. फॉर एग्जाम्पल, आप एमिनेम के कॉन्सर्ट में गए. You forget the rest of the world. You are just focused on what he's singing, your love for Eminem, your love for the music, your love for the art. You are in the state of एकाग्रता. एक ही थॉट है ना दिमाग में, म्यूजिक सुन रहे हो. डांस की बात करी, आप किसी क्लब चले गए, राइट, या भजन सुन रहे हो, या बहुत इंटरेस्टिंगली आप गार्डनिंग कर रहे हो किसी दिन. वट एवर यू थिंक एक्टिविटी यू आर डूइंग विथ फुल अटेंशन, वहां पर आपके मन में बस एक थॉट है. पहले हम उस स्टेज तक अगर पहुंच जाए, हमको वो मेडिटेशन का रस आने लग जाएगा. नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, दैट इज द लास्ट स्टेज, जिसको हम समाधि वाली स्टेट भी कहते हैं. दैट इज द लास्ट स्टेज. Even if we have tiny ounces of the second last stage in our life where we are ekagra, we are fully focused, you will feel loved, you will feel rejoice in that moment. Cool. So which means like even इसको हम बोल सकते हैं like visualization kind of meditation. Last second इसमें है like we are only having one thought and last वाले में we are not thinking about anything. So I feel like उस moment पे visualization plays a major role and उसमें clarity, I think clarity about your life plays a major role. वो Like सब फोर्थ स्टेज तक है. okay. ये जो सारी टेक्निक्स हैं, जितनी भी सारी टेक्निक्स हैं, ये सारी फोर्थ स्टेज तक है, जब तक आपको एकाग्र होना है. फ्रॉम फोर्थ स्टेज टू फिफ्थ स्टेज कोई रास्ता नहीं है. दिस इज अ जंप. Okay. देयर इज नो वे, देयर इज अ जंप इनटू नथिंगनेस. Cool. क्योंकि अगर एक्चुअल स्टेट में बात करें, तो जब हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन हम करने चाहते हैं, बिकॉज एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू डू मेडिटेशन, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर ध्यान. ध्यान तो लगता है, ध्यान लगाते नहीं है. ध्यान लग जाता है अपने आप, Correct. राइट. तो वहां आप जंप कर रहे हो. ध्यान को अगर हम योग की डेफिनेशन से पढ़े ना, देन उसको कहते हैं देयर इज नो एफर्ट देयर. ठीक है. वहां आप कुछ एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो अपनी तरफ से, वो हो रहा है फिर. यू जस्ट देयर. आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा, लाइक इफ यू आर रियली एडिटिंग अ पॉडकास्ट और यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ पीस ऑफ कंटेंट, या किसी क्लाइंट कॉल पे कोई वेबिनार डिलीवर कर रहे हो. हैव यू नोटिस दैट यू आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो Yes. where you are not thinking about anything, but that is just happening through you, True. where you feel like your body is just a apparatus. Thoughts are coming in, they are letting out from your body, from whatever you're doing. Thoughts are coming in, energy is coming in, that is flowing out, and you're just an observer. That is the epitome of ध्यान. अगर हम उसको बिल्कुल लिटरल टर्म्स में बात करें, तो वहां पे कोई एफर्ट नहीं है. वहां पे आप ना विजुलाइज कर रहे हो, ना आप अलग से आंख बंद करके बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो. वहां पे जस्ट इन अ स्टेट ऑफ नेचुरल फ्लो. Cool. दैट So इज द स्टेट जहां पर आप वो कनेक्शन फील कर पाओगे ना, जो योग का यूनियन बोलते हैं, वो आप फील कर पाओगे फिर. correct. हाँ So जी. start में you mentioned like yoga is nothing but science. तो ये साइंस को ब्रेक डाउन करते हैं. लेट्स टॉक like right from the ABC of what yoga is all about and how do we kickstart our journey into yoga and meditation. ओके. सी, योग में अगर हम योग की एबीसीडी की बात करें, तो द बुक आई वाज रेफरिंग टू, पतंजलि योग सूत्र, तो द ऋषि पतंजलि हैज क्लियरली ब्रेक डाउन योगा इनटू 8 स्टेप लैडर. ठीक है. जैसे आपको ग्राउंड फ्लोर से छत तक जाना है, देयर आर 8 स्टेप्स इन बिटवीन. ओके. द 8 स्टेप्स आर नेमली यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि. ये 8 स्टेप्स हैं. ठीक है. which starts from very basic. यम. यम मीन्स देयर अ मॉरल कंडक्ट, हमारा क्या कैसा होना चाहिए. ठीक है. सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, मिनिमलिज्म रखना चाहिए. सिंपल टर्म्स. ये आज से 3000 साल पहले बता दिया था. इमेजिन द पावर ऑफ योग, राइट. तो यहां से शुरू करो. आसन करने से पहले सच बोलना स्टार्ट कर दो. सच बोलना का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई पसंद नहीं है तो जाके मुंह पे बोल दिया मुझे तुम पसंद नहीं हो. सच बोलने का मतलब है खुद से सच बोलना स्टार्ट करो. A lot of times in life we don't speak truth with ourselves. सबसे तो बोल लेंगे, खुद को भी झूठ बोलना सीख जाते हैं, फिर वो हैबिट पड़ जाती है झूठ बोलने.
तो एक योगी खुद से हमेशा सच बोलता है, मुझे पता है अगर मैं इस आसन में नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरा ये कोर स्ट्रांग नहीं है, मेरे लेग स्ट्रांग नहीं है, क्या स्ट्रांग नहीं है। वो खुद को सच्चाई अपनी पता होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू इवन इफ यू आर पीपल प्लीजिंग, यू शुड नो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है उसके पीछे। तो खुद से सच बोलना अगर सीख जाओ ना, आधा योग वहीं अप्लाई हो जाएगा आपका। Correct. राइट। देन देयर कम सम नियम आते हैं। फिर उसके बाद आप आसन प्रैक्टिस में जाते हो। तो यम नियम बेसिक प्रिपरेशन हो गया आपका। ठीक है। यम नियम में सिंपल जो बेसिक प्रिपरेशन में आता है कि यू गेट योर बॉडी इनटू अ डिसिप्लिन। एक क्लीन और डिसिप्लिन लाइफ आप जीने लग जाते हो। क्योंकि डिसिप्लिन भी चाहिए ना, आसन प्रैक्टिस भी करनी है। इफ यू हैव pulled up joined an asan class which you have to join at 7 a.m. sharp, you have to show the discipline to come in the class every day. So discipline comes pre-hand. वो प्रॉपर लेडर है। एक स्टेप छोड़ के आप सेकंड स्टेप पे जंप नहीं कर सकते, पहला स्टेप जरूरी है। अगर Correct. डिसिप्लिन नहीं होगा, हफ्ते में 5 की जगह 2 ही दिन क्लास करोगे और फिर सारे आसन भूल जाओ। राइट। That's true. सो दैट इज द हाउ योगा लैडर वर्क्स। देन यू डू द आसन, यू डू द आसन इज द बॉडी पार्ट। जो आजकल योग का डायरेक्ट मीनिंग आसन हो गया है ना, दैट इज जस्ट द थर्ड लैडर ऑफ इट। अभी आगे सीढ़ियां और बची है 5। Correct. तो पहले हम बॉडी को पकड़ते हैं, आसन से बॉडी को पकड़ा। फिर बॉडी के बाद हम पकड़ना चाहते हैं माइंड को। लेकिन देर इज अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड, दैट इज द ब्रेथ। सो बॉडी के बाद हम पहले ब्रेथ को पकड़ते हैं। देन प्राणायाम हो गया, ब्रेथ वर्क इज प्राणायाम। फिर when you have practice some breath work, then you go for pratyahar. Pratyahar is controlling, or not controlling, sorry, pratyahar is managing the senses. जो हमारे सेंसरी प्लेजर्स के पीछे हम भागते हैं ना, कि आज होली है बहुत सारी गुजिया खा लेते हैं, इतनी गुजिया खा लेंगे कि कल सुबह कुछ खाने लायक ही नहीं बचेंगे। Correct. राइट। सो फिर धीरे धीरे जब आप ब्रेथ को कंट्रोल करते हो, सेंस कंट्रोल आता है लाइफ में। हर तरह के सेंसरी प्लेजर्स को आप थोड़ा सा मैनेज करने लगते हो, सप्रेस नहीं करना है, मैनेज करना है। यू शुड नो व्हेन टू गिव इन फॉर द सेंसेस एंड यू शुड नो व्हेन टू नॉट गिव। राइट। देन सेंसेस मैनेज कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप कम्स धारणा, द कॉन्सेंट्रेशन पार्ट, द विजुअलाइजेशन पार्ट। जितनी भी सारी टेक्निक्स हैं वो धारणा में लगती है। जो हम जितनी टेक्निक्स की बात कर रहे थे, वॉकिंग मेडिटेशन, ये सारी चीजें, ये सब धारणा में लग रही है जब हम वो सिंगल थॉट वाले स्टेज पे पहुंच रहे हैं। देन फिर हम ध्यान में जाते हैं। ध्यान को लूजली वी कैन अगेन ट्रांसफॉर्म इट टू मेडिटेशन। धारणा यू कैन से एज इट्स अ फोकस कंसंट्रेटेड स्टेट, स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान is meditation, and then you go towards the ultimate union, that is samadhi, and there is no English The word for state of that. flow. The state of flow. ठीक है. So correct me if I'm wrong. I think मेरा flow जो है वो all the 8 things I'm able to remember that. First two Perfect. are like where we have to manage ourselves. जो हमारा जो हम लाइफ में भी कर रहे हैं, we have to be honest with ourselves. क्लैरिटी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, Mm-hmm. किसमें प्रॉब्लम्स हैं, Mm-hmm. क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. वी शुड बी ट्रुथफुल टू आवर ओन सेल्फ. Yeah. देन वी शुड मूव टुवर्ड्स आसन, बिकॉज इवन उसमें डिसिप्लिन वगैरह लगेगा. राइट. Yeah. उसमें डिसिप्लिन वगैरह लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. देन वी हैव टू मैनेज आवर सेंसेस. आई थिंक Breath work. Breath work. ब्रेथ, या वी Body. हैव टू मैनेज. Body के बाद breath. Correct. We हाँ. have to get to the breath, and then we have to go to the senses part. We have to manage it, and then it Yeah. goes to like meditation stage, like एक ही thought पे focus करना, and then comes the state of flow, the last one. Yeah. Cool. 8 things. I think इसका भी एक snapshot तो पक्का लगेगा. So Absolutely. that's Absolutely. about yoga part, and anything else with respect to yoga which we need to keep in mind, ताकि हम लोगों को बस basic understanding मिल जाए, and then we can just kickstart our journey. See, योग को डेफिनेशन जो है ना, आसन आजकल हो गई कि योग इज अ फिजिकल वर्कआउट। वो इसलिए हो गई है बिकॉज बॉडी इज वेरी मच ग्रॉस। बॉडी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बॉडी को इन ट्यून लाना बहुत इजी है, एंड दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। ओके। सो एक सिंपल चीज हम अपने माइंड में रख सकते हैं कि योग इज जस्ट नॉट अ फिजिकल वर्कआउट, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ। वो एक जो हु क्वेश्चन. एम आई वाला हाँ. क्वेश्चन है। हाँ एक जी। एक सेंटेंस है. व्हाट आई कैन मेंशन अबाउट योगा हियर, इट्स हम्म। लाइक डिलेड ग्रेटिफिकेशन, सिंपली पुट. हम्म। अगर हम लोग ओवरऑल चीजों व्हाई को डू यू से देखें, दैट? डिलेड ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार अगर मैं जिम जा रहा हूँ, सो इट्स लाइक मुझे 1 महीने में 2 महीने में रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे. बट इफ आई हैव टू हम्म। गो थ्रू द ओवरऑल योगा प्रोसेस एंड टू द स्टेट ऑफ फ्लो, आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मंथ्स, आई थिंक मे बी कपल नॉट ऑफ एट ऑल, मंथ्स. नॉट एट ऑल। Just ओके. practice for 5 minutes for 5 days and you will see the changes. It's ओके. not a सो delayed gratification. ठीक है, तो इसमें भी Not at all. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन थोड़ा रोल प्ले करता है. Instant, yeah.
बस ये है कि अगर आपका गोल जितना बड़ा है, देखो जिम में भी क्या बात है, इट्स द सेम, ओके। इफ यू वांट टू जॉइन द जिम और आपको केवल बाइसेप्स इतने ग्रो करने हैं कि टी शर्ट टाइट हो जाए, कॉलेज में मैं फैंसी दिखूं, हो जाएगा 20 दिन में। बट मसल स्ट्रेंथ आएगी क्या? 20 दिन में नहीं आएगी। नहीं आएगी। मसल स्ट्रेंथ के लिए अगेन 6 महीने डिसिप्लिन से जिम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सही न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, जंक फूड बंद करना पड़ेगा। जिम के साथ भी जंक फूड खाओगे, मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी सही से, नहीं मसल होगी। स्ट्रांग नहीं होगी। 2 महीने जिम छोड़ो, फिर वो मसल फ्लैट हो जाएगी, है ना। करेक्ट। वहां भी वही टाइम लग रहा है। तो अगर इंस्टेंट इफेक्ट चाहिए, योग भी आपको इंस्टेंट इफेक्ट दे सकता है। यू जस्ट प्लग इन टू अ वेरी स्मूथ भजन, स्टार्ट डांसिंग, इंस्टेंट इफेक्ट, राइट। डू डायनेमिक ब्रीदिंग, एक सेशन में यू सी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगर गोल बड़ा है, अगर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ जाना है, अगर खुद को समझना है, गहरी चीजें करनी है, यू हैव टू गिव इट टाइम। करेक्ट। करेक्ट। सो इट्स ये भी लाइक, अगेन एक मिथ है कि मेनी टाइम्स पीपल कंसीडर कि नहीं, योग में तो बहुत टाइम लगेगा जी, जिम कर लेते हैं। नहीं हाँ नहीं, योग करेक्ट। में भी तुरंत मिल जाता है रिजल्ट। वो डिसिप्लिन से लेकर आओ, यू विल गेट द रिजल्ट। सो इट्स लाइक छोटे जो रिजल्ट्स चाहिए वी कैन गेट इट इंस्टेंटली, काइंड ऑफ इंस्टेंटली हम्म। ऑल्सो। एंड जो या बड़े गोल्स अचीव करना है एंड उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज वी नीड टू बिल्ड दैट डिसिप्लिन टू डाइव डीपर इन। एग्जैक्टली, दैट्स विद एनीथिंग इन लाइफ, नो। करेक्ट। एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है, 3 दिन में कर लोगे। एक डिग्री चाहिए, 4 साल लगेंगे। करेक्ट। दैट्स करेक्ट। ठीक राइट। है, सो ये योगा का लाइक एबीसी हो गया where we have discussed about the 8 phases of it, and you mentioned हम्म। about dynamic breathing right now. So you have also expertise in that, so let's discuss about what are the different types of breathing processes and how we can gain mastery on that. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, ओके। बट द वेरी बेसिक थिंग, उसके टाइप्स में जाएंगे तो इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस। बट जहां हमको जानना जरूरी है, एंड विच इज लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात करते हैं, ठीक है। बिकॉज अभी तो हम सबके पास टाइम नहीं है, वी एवरी वन नीड्स क्विक क्विक क्विक, रील की तरह ऐसे फटाफट 1 मिनट में रिजल्ट चाहिए, है ना। Correct. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू वरी अबाउट ब्रीदिंग इज, अब आप मेरे को बताओ, सबसे नेचुरल फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग कौन सी है जो आपने देखी होगी? ट्राई Breathing टू रिकॉल। normally, I think normal one. नहीं, नॉर्मल क्या है? जस्ट डिफाइन द नॉर्मल। Like we are deeping, like we are breathing complete deep and like kind of like जो abdomen होता है वहां तक वो होना चाहिए flow. हम्म। एंड यू नो वो कोटेशन सुनिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ Yes. दैट लाइन? Yes. राइट। नाउ इमेजिन अ वेरी जस्ट बॉर्न, न्यू बॉर्न बेबी ब्रीदिंग। वो कैसे ब्रीथ करता है? वेन एवर ही और शी ब्रीथ, उसका ऐसे पेट फूल जाता है पूरा, पूरा ऐसे हाँ. बहुत क्यूटली उसका पेट फूलता है, अंदर जाता है, पेट फूलता है, अंदर जाता है ना। Correct. दैट इज द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग वी शुड डू। बेली ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं इसको। बट अभी इफ यू जस्ट नोटिस योर सेल्फ, वी आर जस्ट ब्रीथिंग टिल चेस्ट, वी आर, हमारी सांस Correct. जा ही नहीं रही है पेट तक, Correct. है ना। Correct. एंड अगर हम थोड़ा सा एनाटॉमी में जाएं, आवर लंग हैज 3 लोब्स, अपर हाफ, अपर मिडिल एंड लोअर, ओके। तो हम यूजुअली जब चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, लंग के केवल ऊपर वाले अपर हाफ तक में हमारी सांस जाती है। द लोअर हाफ इज नॉट इवन गेटिंग द राइट ऑक्सीजन। एंड देन कंटिन्यू इट फॉर 10 years, कंटिन्यू फॉर 15 years, एंड देन वी सडनली रिक्लेम की 40s में, 30s में जाकर अचानक से स्ट्रेस इश्यूज क्यों हो रहे हैं, अचानक से बीपी इश्यूज क्यों हो रहे हैं, अचानक से शुगर, पैंक्रियास क्यों सब परेशान हो रहा है? यू हाँ, नॉट थोड़ा सा गिविंग फास्ट ऑक्सीजन वॉक टू योर करने पे बॉडी। इट्स लाइक बहुत वो हो रहा है, सफोकेशन काइंड ऑफ, हाँ, वी आर जस्ट। एग्जैक्टली, ऑल टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। जो जेनेटिक्स हैं उसके तरह से सिम्टम्स सब में डिफर करेंगे, राइट। बट द रीजन इज सिंपल, हम ब्रीदिंग ही सही नहीं कर रहे हैं। योग करने तो हम मतलब बड़ी बातें हो गई, वो हम बाद में कर लेंगे। बट अगर दिन में हम इतना भी अवेयर हो जाएं कि देखो कितना भी बिजी हो, अ वेरी सिंपल लाइक दिस कुड बी द टिप फॉर एवरीवन वाचिंग दिस, लाइक इवन इफ दे डिडंट लिसन टू एनीथिंग फ्रॉम द पॉडकास्ट, एक बस चीज ध्यान रह जाए कि 24 घंटे में से 5 मिनट अपने लिए निकाल लो। डोंट से नो, कोई बाउंड्रीज मत सेट करो, कुछ मत करो, बस 5 मिनट अपने लिए तो निकाल सकते हैं ना, आउट ऑफ द 24 hours। दैट्स लाइक नॉट इवन 1%, राइट। यू करेक्ट. नो मैथ्स बेटर देन मी, दैट्स नॉट इवन 1%। करेक्ट. करेक्ट. 5 मिनट निकालने हैं, बस उस 5 मिनट में बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, नोटिस हाउ योर ब्रेथ इज फ्लोइंग, एंड ट्राई कि व्हेन यू आर इनहेलिंग your stomach floats, when you're exhaling your stomach goes back in, you're breathing till the abdomen, you're not just breathing till chest. And start this deep breathing for 5 minutes, ठीक है। 5 दिन करो, and you'll see instant results। कोई हेल्थ इश्यूज है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होंगे, स्ट्रेस है, क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी।
जॉब में कंफ्यूजन हो रहा है, जॉब स्विच करनी है कि नहीं करनी है, थोड़ी सी क्लैरिटी मिलने लग जाएगी, प्रायोरिटीज क्लियर होने लग जाएंगी, राइट? दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, एंड आई थिंक everyone should at least spend 5 minutes doing something that they are alive for. That's Try true. not breathing, right? You won't be alive. Correct. So there was this very funny reel I did some time back, and then I said, because from 2 3 days, every client was asking me like, why are you focusing so much on breathwork? Why are you focusing so much on breathwork? So I thought, okay, let me answer them through a reel. And the reel was very simple. I said, when clients ask me, why do I focus so much on the breathwork? I say, try living without the breath. Try We doing can't. it. We You can't. can't. We can survive without food. We can survive without water. We can survive without clothes, without home, anything, But but not not without even breath. a minute for without the breath, right? Correct. That is why the breath work is so much important. That's correct. And यही होता So है, पता है लाइफ में what happens is, you asked me the lesson from भगवत गीता, या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, हम इतनी बड़ी बड़ी चीजों पे चले जाते हैं कि हम छोटी सी एस्पेक्ट को भूल जाते हैं। हमको लगता है मेडिटेशन करने जाएं, बहुत सारी वॉकिंग मेडिटेशन के टाइप सीख लें, ब्रेथ मास्टरी कर लें, या बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, रहने दो। बस 5 मिनट गहरी सांसें ले लो दिन में, लाइफ विल स्टार्ट सॉर्टिंग इटसेल्फ आउट। correct. And ऑल द even उसी ऑल द moment पे आंसर्स it's आर like, इनसाइड यू। हाँ, even सॉरी। when we are breathing in a deeper format, I think वहां पे जो है ना, it's like filter automatic लग जाता है, and the thoughts which are deeper one and which are actually important for us, वही thoughts रह जाते हैं। And then it's like वो होता है ना, sometimes we see lot of dreams in the night and सुबह को कुछ कुछ dreams होते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। So it's like जो भी thoughts या जो कुछ भी चीजें हम सोच रहे हैं, the things which we are thinking about, I think वो deep breathing करने से most of the things get sorted, and then जो बहुत important चीजें हैं वही दिमाग में click हो जाती हैं, and then we just राइट। work on it. And I think या sometimes it's like it's life for a lot of people also. ये thought आया, it's या just an idea, let's work on it, and it's their life. it happens, we have seen like many startups have just started with a single thought, Correct. or rather we could say everything starts with a single thought. Yes, ये not with फोन thinking, क्या but था, with a thought. ये फोन बना कैसे, ये एक थॉट से बना ना, Correct. सब कुछ थॉट से ही Then बन it रहा है। got transferred into an idea कि यार ऐसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly. फिर and उसको then एग्जीक्यूट process करा, and all देन those द things. होल प्रोसेस कम्स अप, Correct. राइट? That's true. So let's discuss about your personal life right now. So as you're हाँ। into Bhagavad Gita also, and you're into spiritual aspects a lot. So what's the definition of money according to you? Definition of money, energy. That's the simple Go thing. deeper into it. Okay, so I'll just tell you how I think about money. For example, अभी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि you go to mall, okay, you go for shopping and you see a very fancy dress, okay, you when you pay for that, when you do the amount, when you pay for that dress, or when you pay for anything that you buy, what is the thought that comes to your mind? Sense of gratitude. For me, it's the same. Yeah. Exactly, that is what should come. But usually लाइफ में नहीं करते हैं लोग, ये लगता है कि खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, Correct. है ना? That Correct. thought comes. But you should feel grateful कि I have that money, I can pay for it. A lot of people cannot. Whatever it is you're buying, जरूरी नहीं है फैंसी ड्रेस की बात हो, अगर आप आटा दाल चावल भी ले रहे हो, you have the money, that is why you are able to buy ना, so that is an energy exchange. Feel grateful whenever you are crediting something. Feel grateful अभी आप किसी को पैसे दे रहे हो कि you have that amount, कि आप उसको देके कोई कमोडिटी ले सकते हो, है ना? Correct. तो अगर हम छोटा छोटा भी ये समझे ना कि मनी है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, फील ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको मिल रहा है तो भी फील ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैंने अच्छे से काम करा था, द बॉस इज गुड इनफ टू गिव मी फुल सैलरी, Correct. राइट? Correct. सो So या, it's like मनी इज सिंपली एनर्जी फॉर मी। correct. So it's like there's also one quotation. I think it's like uh, whenever we are being more grateful for the things which we have, we will get more things to be grateful for. So I think even for me, एब्सोल्युटली। I think 2.5 to 3 years back, honestly, my financial condition was also not that very good, which is right now. And I definitely know that whatever stage I'm right now, that is not even 1% of what my life is going to be like. But still, it's like we have to be grateful for all the things which we have right now, and then definitely we will attract the goals, the dreams what we have set for ourselves. That's cool. So okay, so let's we have discussed about money part, and we also discussed about Bhagavad Gita. We have also discussed about this.
So what are your plans? Let's discuss about your community and let's discuss about that. So what are your plans? Mm-hmm. Maybe 1 year down the line, let's discuss about that first. Mm-hmm. Yeah. So see, as I told you, when I transitioned from being a computer science engineer, a corporate person, to a yoga trainer, to a yoga aspirant, I healed a lot of parts of myself in the process, right? There are a lot of emotional baggages, emotional struggles that I overcame, right? And everyone faces that. Abhi, I think it is about time we should start accepting that fact. Everyone faces emotional turbulences. वो होते हैं ना, ups and downs आते हैं रोज सुबह उठ के. रोज सुबह कोई एनर्जी वाला थॉट में नहीं उठता है. There are some ups and downs every time. The Correct. circumstances give us some ups and downs. The life throws balls, है ना? So now that I have come through that journey, the only thing to be is to do next is be grateful for that and help as much people as I can to do the same. So my current mission or my current goal is just to help other women who have those emotional struggles. Everyone has, and just help them overcome that through the original therapy, which is the yoga therapy. Cool. That's So perfect. that is And what even my I aim is. feel, I feel like, Mhm. see, like as a coach also, like even I have a lot of coaches on me. So it's like life to wahi same hone wali hai. We are going to live for, let's assume 70, 80, 100 year whatsoever. But let's Mhm. assume you are into yoga right now. You have done a lot of blunders, a lot of mistakes. You have learned about it. And agar main wo cheez, like I'm learning from you, it's like your 10, 20 years of whatsoever experience I'm gaining within couple of months. And at least whatever mistakes you have made, Mhm. I think अगर वो mistakes मैं नहीं भी repeat करता हूँ, so it can actually save me a lot of time. And whatever, let's assume mastery you are achieving on your overall breadth. Mhm. Let's take for example, Yeah. maybe I can achieve that what you have achieved in 60 years, I can achieve it in 25 years or 30 years also. Maybe it's like Absolutely. saving of Absolutely. 30 years straight away. So that's Yeah. why I feel we should have coaches, whatever life problems that we are facing. I think Exactly. that's really very important. And people feel कि यार मुझे आता है, like I'm just not like I'm just not mean for this, or maybe this is my life right now and I'm mean to go through this problem. Even there are a lot of people whom I met, they mentioned to me like, मैं उनको straight away mention करता हूँ like you're facing this financial problem, although like वो खुद मुझे बोलते हैं कि like I'm facing this, I'm not able to do this, not able to do that. And मैं उनको बोलता हूँ like why don't you take charge of this and why don't you change all these things and all. So they do mention कि Mhm. यार it's my life and it's like ये होना ही था and I'm just going through the flow. जब time आएगा I'll just change it. यार you can't do it. Like you can't just. It's like Mhm. I think there's one quotation also like if you're not taking charge of anything in your life, you will live the life of mediocrity. Mhm. So I think people should start taking charge. And honestly, I'll also learn about yoga and breathing for you in depth. And so, any last Mhm. advice, or let's assume any last, we can mention any lesson also for the Mhm. overall audience, because हमने Gen Z और Gen X के बारे में तो discuss किया है, but let's discuss about the advice for in general audience, so that the Right. people in Right. the age of millennials or even beyond that, like Mhm. my parents also, so they can also Mhm. just get this advice and they can implement it. Absolutely. I'll come to that, but I would just want to say something on the last thing that you said. Yeah. है ना? Why people are not doing something about it. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने अपने घर में बहुत पहले कभी सुनी होगी, शायद पता नहीं किससे सुनी थी, अब तो नहीं याद, बट बहुत पहले एक स्टोरी सुनी थी. आई जस्ट, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं सुनी हो, या सुनी हो तो इट्स वर्थ रिपीटिंग. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. Once a time, a mother and a daughter were just walking down the street. Okay, while walking, they just see a dog who's just lying and crying. उसके पैर पे कोई लकड़ी आके गिर गई थी. Okay, a very heavy wood. The dog is crying very badly. The child asked the mother, the daughter asked the mother कि mama, why is he not moving? उसको इतना दर्द हो रहा है, वो हिल क्यों नहीं रहा है? Guess what the mother replied? The mother replied, maybe the pain is not hurting enough. Maybe वो इतना ज्यादा दर्द ही नहीं हो रहा है. Okay, I'll break it down. लाइफ में ना हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, इसका जो इनिशियल जो इनेट नेचर है वो ये है, हमको प्रोटेक्ट करके रखना, हमको कंफर्ट जोन में रखना, है ना?
करेक्ट. तो व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं, चाहे वो मेंटल ट्रबल हो, चाहे वो फिजिकल ट्रबल हो, फाइनेंशियल ट्रबल हो, करियर ट्रबल हो, जब वो उस प्रॉब्लम में होते हैं ना, दे गेट कंफर्टेबल विद द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उनको अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा, Which they are जिसके not लिए कुछ ready to अलग do. से मेहनत पड़ेगी, विच दे आर नॉट रेडी टू डू, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट हर्टिंग इनफ, क्योंकि हम वो कहते हैं ना कि द कंफर्ट ऑफ दैट पेन इज सो फेमिलियर कि हम अनफेमिलियर जोन में जाना ही नहीं चाह रहे हैं. सो इट्स अ प्ले ऑफ फेमिलियरिटी, राइट. Even if you've seen like you must, I have had many friends जो कि एक जॉब में they are not happy with the jobs, बट स्टिल दे विल कंटिन्यू इट, क्योंकि नई जॉब में जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत है. यार यहाँ क्या है, बॉस 2 हफ्ते में 4 में से 3 दिन ही तो रोता है, फोर्थ डे तो बॉस इज हैप्पी, क्योंकि दैट पेन हैज बिकम फेमिलियर टू देम, एंड अनफेमिलियरिटी का अनकंफर्ट दे डोंट वांट टू हैव, That's राइट. सो that's दैट really इज अ वेरी हार्श ट्रुथ. एंड अगेन कमिंग बैक टू योग, दिस इज द पार्ट वेयर आई वाज सेइंग, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. अगर आप किसी परेशानी में हो, बड़ी सी बड़ी परेशानी में हो, लेट इट बी. मतलब नॉट लेट इट बी, आई मीन जस्ट से द ट्रूथ टू योरसेल्फ. कितनी भी बड़ी परेशानी है, स्पीक द ट्रूथ टू योरसेल्फ कि हाँ ये परेशानी है, यहां से मुझे बाहर निकलना है. कैसे निकलना है वो अपने आप आ जाएगा आपके सामने, correct. राइट. And even I think इसका exact opposite भी है. Even this is what I learned from my mentors, that हम्म. when we are looking forward to change anything, whether it is finances, physical, emotional, whatever. So the first step to change is to have the extreme pleasure or the extreme pain. Because वो हम्म. extremes जब तक आते नहीं है, like let's assume either we are inspired enough or we are upset enough. And till the time we are not any one of those, we won't change. Even this is हम्म. what has happened with me a lot. Honestly, like I'm being comfortable with what I am right now. इसकी वजह से ही I'm not focusing on like yoga practices and all. Although like a lot of people do mention like you're very young, but I do mention to them like it's not about age, but it's also about what I need the most. What's my priority, right? So I think I need to be inspired enough rather than being upset. Yes, absolutely. That's cool. Then And only you will be able to direct it correctly. correct. Because honestly, it's like we should also be able to connect with the things which we want to achieve. It should not be like कि यार मेरे दोस्त ने बोल दिया या फिर my colleague is doing this or my parents are forcing me to do that. I feel like we should be able to connect with the things which we are actually doing. So yeah. And the last advice for the audience before wrapping up this podcast. I won't say anything new, but I would just repeat what we have already said. 2 things from that. A, don't feel the pressure of world on your shoulders. Correct. We are not even 1% of Arjuna. If he can have depression right in the battlefield, your troubles are very small, and don't feel panicked about it. You will find the way. Okay? Don't feel stressed much. Don't create stress at all. Stay easy. Keep cool. Okay? The second thing is, please start taking out those 5 minutes out of the 24 hours and focus on your breath. Don't do deep breathing. Don't do anything. Just focus on the natural baby belly breathing. Okay? बच्चे सबने देखे होंगे, नहीं तो यूट्यूब पे जाके जस्ट सर्च आउट बेबी बेली ब्रीदिंग एंड यू विल नो हाउ द बेबी ब्रीथ्स. ओके. Correct. टेक फुल ब्रेथ इन. डीप भी मत करो, बस पेट तक जाना दो, सांस को पेट से बाहर आने दो. इट विल ऑक्सीजनेट योर लंग्स फुल्ली एंड यू विल स्टार्ट सीइंग मेनी मेनी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. जस्ट 5 minutes, और कुछ नहीं. So it's like first is go with the flow and second is focus on your breath. गो विद द फ्लो वुड बी अ डिफरेंट. गो विद द फ्लो में हम काफी बार ना गलत चीजें हो रही होती है तो उसके भी फ्लो में बहते चले जाते हैं. हाँ, correct. Like the right राइट. things. Then you have to define what right is. Then Correct. there is one more complete new podcast we have to do defining the right thing, Correct. right? Definitely, like we will discuss about Bhagavad Gita in depth, and that was the overall podcast. And thank you so much, Medadi, for being on our podcast show. And finally, we did it. And बहुत सारे बहुत ही Yeah. सवाल है with respect to Bhagavad Gita, but let me go through that. And the surprise which I mentioned, chapter 6, shlok 10th. I'm going to go through that by today's day, Perfect. and let's see what's gonna come up Yeah, next. that's a beautiful serendipity, you know, that's a beautiful thing that happened. Yes, because like Nice. I think we are delaying this podcast since 3 weeks. I don't remember. We are. But We are. maybe it was just like timing match hona tha, and yeah. Absolutely. And you know what?
somehow, like, there were things happening in my schedule. I was pretty packed up. We had to delay it for 3 weeks, but there is a thing that I thought, सुबह से मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही है कि this is like a kick start. आज भी होली का दिन है, it's a festival. I was occupied throughout the day, आप भी occupied रहे होंगे, but eventually we took out time. Correct. Right? So it's similar in life कि जो चीज इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे लग रही है, उसको ज्यादा डिले मत करो, टाइम निकाल लो. And thanks to you, Sahil, for welcoming me on this podcast, because from now on, like for the last 3 weeks, I was so occupied I didn't even create any content for my audience. So I'm going to start today because already हम setup में बैठे हैं. So I'm going to start recording reels from today. So thanks a lot for inspiring me, because what I say is, even if you are studying something, even if you're an expert, you don't just become a saint in one day. You still have your ups and downs. And every once in a while, every one of us needs that push. And I'm so grateful to you for giving that push to me today. So thanks a lot. Thanks a lot for welcoming me. And I hope the audience has gained at least some value out of it. So that would be the aim. Yeah. Thank you so Yeah. much, and looking forward for the part 2 of this, and best of luck for all your content pieces which you're going to create. And once again, thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. Namaste. Thank you so much for watching this podcast till the end. हमें comment section में जरूर बताएं that what were your top 5 takeaways from this overall podcast. और आपको spirituality के बारे में और भी ऐसे podcast चाहिए तो please do make sure that you share this particular podcast with at least one friend of yours. And please do make sure that comment section में आप वो भी topics mention करें जिन पे आप podcast सुनना चाहते हो, so that I can bring on more guests on those topics itself, so that you can also get maximum value out of our podcast series. And before you leave, please do make sure that you check out all the social media links and all the other resources by Medha Gautam, which are given in the description section. And before you leave, please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And do check out our previous episodes of the Achievers Club podcast show. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.